Dear students, today we are going to start chapter 3 Indefinite Integration exercise 3.1. Question number 2, evaluate. First one, I equal to integral of tan inverse x dx. So you have to integrate tan inverse x dx. So how will you integrate this? Have you any formula for tan inverse x dx? No, there is no formula directly for tan inverse x dx. So you can convert tan inverse x into sec square x minus 1 by using trigonometry identity, because 1 plus tan square x equal to sec square x. So you can write simply this is equal to integral of sec square x minus 1 into dx. Now separate it. So this is equal to integral of sec square x dx minus 1 dx. Therefore I equal to, now see what is integral of sec square x dx. So integral of sec square x dx becomes tan x minus integral of 1 dx is x plus c, which is constant of integration. So integral of tan square x dx is equal to tan x minus x plus c. So this question is over. Now see second question. Let I equal to integral of sin 2x upon cos x into dx. So sin 2x upon cos x, it has a relation. What is the relation? What is the formula for sin 2x? Since sin 2x equal to 2 sin x cos x, so it is equal to integral of 2 sin x into cos x upon cos x, because sin 2x formula is 2 sin x into cos x upon cos x. So cos x going by cos x, what is the remaining term? I equal to 2 sin x dx. So here 2 is constant. So integral of sin x is what? Integral of sin x dx is what? Minus cos x. So it is equal to minus 2 into cos x plus constant of integration, that is c. Dear students, हमेशा यह ध्यान देना है कि प्लस सी सभी क्वेश्चन में एंडिंग में लिखना है. जैसे इंटीग्रल ओवर होता है तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा कि कांस्टेंट टर्म वहाँ पर लिखना है. अगर कांस्टेंट टर्म नहीं लिखते हो तो अपने मार्क्स का नुकसान होगा इन इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन. नाउ सी क्वेश्चन नंबर थर्ड. लेट I equals sin x upon cos square x into dx. तो अब इसको हमें चेंज करने के लिए क्या करना चाहिए? वी शुड राइट cos square x as cos x into cos x. So it is equal to इंटीग्रल ऑफ sin x अपॉन cos x into cos x. तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं? sin x अपॉन cos x. It is sin x upon cos x. So sin x upon cos x becomes what? Tan x. And here 1 upon cos x remaining. So 1 upon cos x, you know very well, it is sec x and dx as it is. So our integral becomes tan x into sec x into dx. So what is the formula for tan x into sec x? मैं उम्मीद है आप लोगों ने हमारे लिस्ट से सभी फार्मूले अच्छे से बाहर कर लिए होंगे. तो यहाँ पर बता दीजिए कि इंटीग्रल ऑफ tan x into sec x dx is what? Yes, sec x. Okay. Therefore, I equal to sec x plus c. So I equal to sec x plus c. This is the final answer. This means integral of sin x upon cos square x dx equal to sec x plus c. Now see question number 4. तो एक एक सम को करते जाओगे और अगर फार्मूले का कहीं भी प्रॉब्लम आता है तो फार्मूला अपना कंटिन्यूसली वहाँ पर चेक करके देख लो, लिस्ट को देखो और ट्राई ये करो कि सभी फार्मूले अच्छे से लर्न हो जाएं, जिससे बीच बीच में लिस्ट की हेल्प न लेनी पड़े. और दूसरी बात ये भी ध्यान देना है कि इंटीग्रेशन फार्मूले के साथ साथ हमें ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले को भी रिवाइज कर लेना है, क्योंकि देखो सभी क्वेश्चन अभी रिलेटेड टू ट्रिगो हैं, अलजेब्रिक भी हैं, सब टाइप के क्वेश्चंस आएंगे. तो जहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आएगा वहाँ हमें ट्रिगो की फार्मूला श्योर यूज करनी पड़ेगी, तो ये ध्यान देना है. ओके. नाउ सी फोर्थ वन. I equal to integral cos 2x upon sin square x dx. So this is cos 2x upon sin square x. तो हमें cos 2x का एक ऐसा फॉर्मूला लिखना चाहिए जो sin स्क्वायर से रिलेटेड हो. ओके.
तो अपने पास कितने फार्मूले हैं, एक तो है 1 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स और एक फार्मूला है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स जो यहाँ पर लिखा गया है। तो दोनों में से कोई भी फार्मूला लिखोगे अपने पास आंसर रेडी होगा, एनी वन। तो कोई भी स्टूडेंट यहाँ पर 1 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स का भी फार्मूला यूज़ कर सकते हो, या कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। दोनों फार्मूले से सेम आंसर मिलेगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, ये ध्यान देना है। तो इन केस अगर कोई स्टूडेंट को यहाँ पर ट्राई करना है कि cos 2x इक्वल टू 1 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, तो उससे भी लिख करके ट्राई कर सकते हो, उससे भी अपने को सेम आंसर आएगा। और cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स से भी सेम आंसर आएगा। So cos 2x equal to cos square x minus sin square x, it is trigonometry formula upon sin square x as it is into dx. Now separate it. When we separate, so cos square x upon sin square x becomes cot square x. So it is equal to integral of cot square x minus sin square x upon sin square x 1 whole dx. तो ये इंटायर पार्ट का यहाँ dx एक ही साथ लिखा हुआ है। अब इसको चाहे तो सेपरेट करके या कैसे भी इंटीग्रेट कर सकते हो। तो देखो, बट कॉट स्क्वायर एक्स हैज़ नो फार्मूला, डायरेक्टली इसका कोई फार्मूला नहीं है। तो कॉट स्क्वायर एक्स को हमें क्या करना होगा, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन बाई यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। सो इट इज इक्वल टू इंटीग्रल कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, और एक माइनस वन अपने पास पहले से है तो माइनस वन डी एक्स। नाउ इट इज कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस टू डी एक्स। So integral of cosec square x dx is minus cot x, and integral of minus 2 dx is minus 2x plus c. So therefore I equal to minus cot x minus 2x plus c. So question number fifth is over. Sorry, fourth one is over. Now fifth, I equal to integral cos 2x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखो इन दोनों क्वेश्चन में क्या थोड़ा सा ही डिफरेंस है, इसमें सिर्फ cos 2x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स था, और यहाँ पर क्या है cos 2x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, मीन्स वन मोर टर्म मल्टीप्लाइड इन डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर भी सेम फार्मूला अप्लाई करना है, cos 2x इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। सो इट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स सेम into dx. Now separate it. When we separate means इनको अलग अलग लिखोगे तो cos square x upon sin square x into cos square x, here cos square get cancelled, तो 1 upon sin square x क्या होता है cosec square x, so it is equal to integral of cosec square x minus sin square x upon sin square x into cos square x, here sin square x get cancelled, 1 upon cos square x is sec square x whole dx. So integral of cosec square x is minus cot x, it is formula, and integral of sec square x is tan x, minus sign in between them as it is, plus c constant of integration. तो ये भी क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से जितने भी फार्मूले हैं, जो भी मैं फार्मूला लिस्ट अपने प्रीवियस लेक्चर में प्रोवाइड किया था, उस लिस्ट को अच्छे से बाहर कर सकते हो, और उसको बाहर करने के साथ राइट करके प्रैक्टिस करो, राइटिंग प्रैक्टिस। फिर कंफर्म करो कि सभी फार्मूले अच्छे से लर्न हो गए हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले रिवाइज करो एंड देन स्टार्ट योर इंटीग्रेशन चैप्टर फॉर द प्रैक्टिस। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 6. लेट I इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। अब यहाँ पर देखो कोई भी स्क्वायर टर्म नहीं है, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। तो हमें इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना चाहिए, सबसे पहले हम डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट यहाँ पर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। तो देखो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स इंटू वन माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू वन माइनस साइन एक्स। तो यहाँ पर लिख सकते हो ब्रैकेट में कि मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 1 माइनस साइन एक्स, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 1 माइनस साइन एक्स। नाउ sin x into 1 becomes sin x, and sin x into minus sin x becomes minus sin square x, and a plus b into a minus b, you know very well it is formula for a square minus b square, so this will be 1 minus sin square x, and you know 1 minus sin square x equal to cos square x. So this is equal to integral of sin x minus sin square x
upon cos square x dx. Now separate it. When we separate, so this is equal to integral sin x upon cos square x. So you know, in the previous question, this term sin x upon cos square x is what? Sin x upon cos x into 1 upon cos x becomes tan x into sec x minus sin square x upon cos square x becomes tan square x whole dx. Now it is equal to integral of tan x sec x dx minus, but tan square x has no formula, so convert it in terms of sec square. It is equal to integral sec square x minus 1, but here before this minus sign, so minus minus plus, so plus इंटीग्रल ऑफ 1 dx. तो यहाँ पर मैंने तीनों टर्म को सेपरेटली लिख दिया है, राइट. So all the three terms are there. Now integrate them. So therefore I equals, what is integral of tan x into sec x dx या sec x into tan x dx, किसी किधर से भी पढ़ो. तो tan x into sec x dx equal to sec x minus integral of sec square x dx is tan x plus integral of 1 dx is x plus c, constant of integration. So your answer for question number 6, I equal to sec x minus tan x plus c. Okay, so this question is also completed. Now see question number 7. I equal to integral of tan x upon sec x plus tan x. I equal to integral tan x upon sec x plus tan x into dx. तो अब यहाँ पर क्या करना है, देखो ठीक वैसा ही है कि यहाँ भी sec x प्लस tan x दिया है, तो ये टाइप के क्वेश्चन में हमें इसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेना चाहिए. तो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय sec x माइनस tan x in this integration. So it is equal to integral tan x into sec x minus tan x upon sec x plus tan x into sec x minus tan x into dx. तो अब सबसे पहले देखो कि sec x plus tan x into sec x minus tan x is sec square x minus tan square x, a plus b, a minus b formula, and sec square x minus tan square x is 1 because of an identity sec square x equal to 1 plus tan square x. So in the numerator we should open the bracket, tan x into sec x, tan x into sec x as it is, tan x into tan x minus tan square x, right. So integral becomes, therefore integral tan x into sec x dx minus integral sec square x into dx प्लस 1 dx. क्योंकि देखो tan स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस. देयरफॉर इंटीग्रल आई इक्वल टू, अब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो देखो ये भी फार्मूला अभी रिपीटेड कई बार आ गया, थर्ड टाइम आया अभी अभी आज के क्वेश्चन में. तो इंटीग्रल ऑफ tan x इंटू सेक एक्स डी एक्स इज सेक एक्स, इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज tan x, इंटीग्रल ऑफ 1 dx इज x plus constant of integration. So therefore I equal to sec x minus tan x plus c. ओके, तो इस तरह से जितना प्रैक्टिस करोगे, देखो हमारे फॉर्मूले टाइम टू टाइम रिपीट होते जाएंगे, और जैसे जितने फॉर्मूले आप रिपीट करोगे उतने ही अच्छे से बार्ट हो जाएंगे, फिर वो एक बार स्टोर हो गए तो फिर जल्दी भूलने वाला नहीं. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 8. I equal to integral of square root of 1 plus sin 2x into dx. तो देखो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन 2x, हमें कुछ ऐसा फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए जिससे हमारा यहाँ पर स्क्वायर रूट रिमूव हो जाए. तो स्क्वायर रूट को रिमूव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ, तो 1 प्लस साइन 2x हैज अ फॉर्मूला cos x प्लस साइन x होल स्क्वायर. क्योंकि देखो जैसे इसको एक्सपेंड करोगे cos x प्लस साइन x होल स्क्वायर, तो हमें ये वापस से टर्म मिल जाएगा. तो 1 प्लस साइन 2x का फॉर्मूला क्या है, cos x प्लस साइन x द होल स्क्वायर इंटू डी एक्स. नाउ स्क्वायर रूट एंड cos x प्लस साइन x होल स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट, यहाँ स्क्वायर रूट अगर कर लोगे तो स्क्वायर रूट निकल गया ऑलरेडी. तो देयरफॉर आई इक्वल टू इंटीग्रल cos x प्लस साइन x dx. नाउ इंटीग्रेट देम सेपरेटली. Therefore integral of cos x dx is sin x, integral of sin x dx is minus cos x plus c.
देयरफॉर आई इक्वल टू sin x minus cos x plus constant of integration that is c। तो ये भी क्वेश्चन हो गया। एक्चुअली ये क्वेश्चंस अपने कैसे हैं, अभी सब हम लोग बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं, एकदम स्टार्टिंग बिगनिंग, क्योंकि लास्ट ईयर नहीं किए थे 11th में। तो इसके लिए अभी स्टार्टिंग फर्स्ट एक्सरसाइज में सिर्फ बेसिक क्वेश्चन दिया गया, तो इन बेसिक क्वेश्चन को अच्छे से क्लियर कर लो। बेस जितना ही अच्छा हो जाएगा आगे उतना ही अच्छा, उतना ही इंटरेस्ट आएगा इंटीग्रेशन को सॉल्व करने में। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 9th। आई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2x dx। अब देखो यहाँ क्या है 1 माइनस कॉस 2x और इसमें क्या था 1 प्लस साइन 2x। तो 1 प्लस साइन 2x का फार्मूला तो ये रहा, लेकिन अभी 1 माइनस कॉस 2x इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस कॉस 2x के लिए हमें किस फार्मूले में जाना चाहिए कि कॉस 2x के ही फार्मूले में जाना है। और अभी अभी मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया था कि कॉस 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो जब यहाँ पर वो फार्मूला अप्लाई करोगे तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ 2 साइन स्क्वायर एक्स। मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2x dx इज इक्वल टू इंटीग्रल स्क्वायर रूट ऑफ 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू dx। dx को हमेशा स्क्वायर रूट से बाहर लिखते हैं। 1 माइनस कॉस 2x इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये भी फार्मूला है ट्रिगो का। तो अब इसका स्क्वायर रूट कर देते हैं। तो देखो स्क्वायर रूट ऑफ 2 एज इट इज, and square root of sin square x is sin x only। तो रूट 2 इंटू इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स। देखो रूट 2 है कांस्टेंट और इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स डी एक्स क्या होता है माइनस कॉस एक्स। तो रूट 2 इंटू माइनस कॉस एक्स करोगे तो क्या मिलेगा, इट इज इक्वल टू माइनस रूट 2 इंटू कॉस एक्स प्लस सी। देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2 एक्स डी एक्स इक्वल्स माइनस रूट 2 इंटू कॉस एक्स प्लस सी। ये रहा इसका आंसर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 10th। अब 10th क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, देखो आई इक्वल टू इंटीग्रल साइन 4x इंटू कॉस 3x dx। अभी हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स आए हुए हैं वो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है। इंटीग्रल ऑफ साइन 4x इंटू कॉस 3x dx। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें किस फार्मूले की तरफ जाना चाहिए, 2 sin a cos b factorization and defactorization formula which you have studied in 11th standard or in previous standards। तो इस फार्मूले को मैं यहाँ डिक्टेट करता हूँ, जस्ट नोट डाउन। यस स्टार्ट। साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी इक्वल टू 2 साइन a कॉस b। हो गया कंप्लीट। या फिर से उसी फार्मूले को रिवर्स ऑर्डर में नोट करो, दोनों ऑर्डर में लिखा देता हूँ। तो नोट करो नाउ, 2 साइन a कॉस b इक्वल टू साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। ये है फार्मूला। तो उस फार्मूले में जाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है, 2। हमें 2 चाहिए यहाँ पर। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मल्टीप्लाइंग बाई 2 एंड डिवाइडिंग बाई 2। ये 2 हमने एडजस्ट किया हुआ है यहाँ पर, देखो मल्टीप्लाइंग बाई 2 एंड डिवाइडिंग बाई 2। तो अपने क्वेश्चन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो दिस इज इक्वल टू हाफ, हाफ इज कांस्टेंट, जो हमने डिवाइड किया उसको हम बाहर लिख लेते हैं, into integral of 2 sin 4x into cos 3x into dx। Now using 2 sin a into cos b formula, so this is equal to half into integral of bracket sin 4x plus 3x small bracket closed here plus sin small bracket 4x minus 3x and small bracket closed rectangular bracket closed into dx। मीन्स हमने यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर लिया, राइट। तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इक्वल टू 2 साइन ए इंटू कॉस बी। अगर किसी ने अभी तक नोट नहीं किया है तो फॉर्मूले को नोट कर लो, करेक्ट। फिर से देख लो, इट इज इक्वल टू हाफ इंटू इंटीग्रल रेक्टेंगुलर ब्रैकेट साइन ए प्लस बी मीन्स साइन 4x प्लस 3x प्लस साइन 4x माइनस 3x होल dx। अब इसको ऐड कर लेते हैं और जहाँ सब्ट्रैक्शन हो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। That is equal to half 4x plus 3x that is sin 7x plus 4x minus 3x that is sin x dx। It is equal to half। अब इसके बाद देखो हाफ इज कांस्टेंट एज इट इज रखा है। इंटीग्रल ऑफ साइन 7x इंटू डी एक्स सेपरेटली इंटीग्रेट करना है, चाहे तो उनको अलग अलग लिख के इंटीग्रेट करो
या डायरेक्टली करो। जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था कि जब भी हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो कोई ज़रूरी नहीं कि एक एक छोटे छोटे टर्म को हम सेपरेटली लिखें और फिर उसको इंटीग्रेट करें। तो हमारे पास जैसे 3, 4, 5 टर्म्स या मोर देन 2 टर्म्स जो भी हैं, हम उनको डायरेक्टली इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर वैसा ही किया हूँ, देखो। इंटीग्रल ऑफ साइन 7x dx इज माइनस कॉस 7x अपॉन 7। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन यहाँ पर, क्योंकि अभी ये जस्ट बिगनिंग हो रही है इंटीग्रेशन की। हम लोग डेरिवेटिव में क्या करते थे, जो मल्टीपल आता था उसको मल्टीप्लाई करते थे, राइट। लेकिन इंटीग्रेशन में ठीक उसका उल्टा होता है कि साइन 7x, इंटीग्रल ऑफ साइन 7x dx का माइनस कॉस 7x, फार्मूला तो उसी टाइप का रहेगा, सिमिलर, बट कोफिशिएंट ऑफ x वी शुड डिवाइड। तो इंटीग्रल ऑफ साइन 7x dx इज माइनस कॉस 7x अपॉन 7। इंटीग्रेशन में ध्यान देना है कि हमें कोफिशिएंट को डिवाइड करना है, करेक्ट। माइनस कॉस 7x अपॉन 7। नाउ इंटीग्रल ऑफ साइन x dx माइनस कॉस x प्लस c। जो भी, फिर से देख लो, जो भी x का कोफिशिएंट रहेगा वो नंबर को हमें डिवाइड भी करना है, ये भूलना नहीं है किसी को, करेक्ट। तो देयरफॉर i इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 14। देखो 1/2 इंटू 7 यहाँ पर है, डिनोमिनेटर में 1/2 इंटू माइनस 1/7। तो ये क्या हो जाएगा, 2 7 जा 14, तो माइनस 1 अपॉन 14 टेकन आउट इंटू कॉस 7x माइनस हाफ इंटू कॉस x, हाफ कॉस x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। मैंने कल भी बताया था, हमारे जितने भी यहाँ पर टर्म्स हैं या जो न्यू स्टूडेंट अभी आज ही इंटीग्रेशन स्टार्ट किए हैं उनके लिए मैं फिर से बता देना चाहता हूँ कि जितने भी टर्म ऑफ इंटीग्रेशन होंगे उतने टाइम्स कांस्टेंट आता है। जैसे हमने इस टर्म को इंटीग्रेट किया तो यहाँ प्लस C1, इस टर्म को इंटीग्रेट किया तो यहाँ प्लस C2, लेकिन सभी कांस्टेंट को मिलाकर हम लोग केवल एक ही कांस्टेंट लिखते हैं, प्लस C, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्योंकि एक सिंगल इंटीग्रेशन होगा उसमें भी प्लस C आएगा, एक बहुत बड़ा टर्म वाला इंटीग्रेशन होगा उसमें भी प्लस C आएगा। तो ये रीज़न है कि हम सभी को मिलाकर एक ही C लिखते हैं, इसलिए हमें डिफरेंट डिफरेंट कांस्टेंट इसमें दिखाई नहीं देते। ऐसा नहीं कि C1, C2, C3, C4 एंड सो ऑन। तो डू नॉट राइट लाइक दिस। टोटल मिलाकर एक ही कांस्टेंट को लिखना है, प्लस C, विच इज नोन एज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और दूसरी चीज़, अभी क्या है, अपना इंटीग्रेशन स्टार्टिंग कर रहे हो, राइट, एकदम अभी बिगनिंग, जस्ट बेसिक से स्टार्ट किया हो। तो मान लो कि अभी हमारे प्रीवियस लेक्चर को, प्रीवियस वीडियो को कुछ स्टूडेंट मिस कर गए हैं, नहीं देख पाए हैं। अगर उन्होंने आज डायरेक्टली स्टार्ट किया है आज के वीडियो को, तो लोग इस वीडियो को देख लें। और बेटर होगा कि पहले इसका प्रीवियस वीडियो देखें, फर्स्ट वन, सेम एक्सरसाइज, एंड देन स्टार्ट सेकंड वीडियो। क्योंकि फर्स्ट वीडियो में उनको, फर्स्ट लेक्चर में टोटल फार्मूले और बेसिक एक्सप्लेनेशन, बेसिक टर्म्स, वो सब वहाँ पर दिया गया है। तो पहले फार्मूले रिवाइज करके फिर अपना आगे का क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ सभी स्टूडेंट को आज के सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।